Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Karim Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we're going to discuss one of the grammatical unit of a sentence, phrase. Phrase is very essential, very important in sentence writing. अगर आप अपने sentence को length देना चाहते हैं, if you want to make your sentence more colorful, उसमें आप information ज़्यादा देना चाहते हैं, तो then we use phrase. is very important topic. आज हम बात करेंगे what is phrase. आने वाले classes में हम इनके types को पढ़ेंगे. So let's get started class. Phrase. Class, what is phrase? So first, just keep in mind that phrase is more than one word. Clear? So phrase is a group of words with no subject verb combination. With no subject verb combination. It doesn't have subject verb combination. Class, a phrase is a group of words, it's more than one word. Clear? A single word cannot be called a phrase, more than one word. And it doesn't have subject verb combination. इसमें subject verb combination नहीं होता. ज़हन में याद रखिए, if there is subject verb combination, that is called clause or sentence. अगर वो meaning provide, complete meaning provide करे या ना करे, लेकिन उसको हम phrase नहीं कह सकते, उसको इधर हम या clause बोलेंगे या sentence बोलेंगे. What is phrase? So it doesn't have subject verb combination. आज हम बात करेंगे कि इसमें subject verb combination नहीं होता. Subject हो सकता है subject phrase, verb phrase हो सकता है, लेकिन इकट्ठा together we cannot use them in the same sentence, in the same phrase. Clear class? For example, in ज़हन में ये बात याद रखें that they do not provide any clear meaning without out of the sentence. अगर ये sentence से बाहर है, so they do not provide any clear meaning. ये कोई clear meaning आपको provide नहीं करता जब तक आप इनको वापस sentence में अपनी position, अपनी जगह पे वापस नहीं रखेंगे. Clear? For example, मैं कहता हूँ made of steel. Made of steel. In the clause. Clear? Talented player on the ground to enjoy life. Clear class? Sitting or smoking in the garden. Broken chair. So class, all these are phrases. They are called phrases because they do not have subject verb combination and they are grammatical units. Phrase को sentence structure के हवाले से जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर डॉन न्यूज़पेपर उठा के देखिए, कोई भी आर्टिकल उठा के देखिए, कोई भी इंटरनेशनल जो मैगज़ीन है उसकी राइटिंग है उसको आप देखें, तो एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं. क्लियर? उसमें आप कंफ्यूज होंगे. एक सेंटेंस शुरू होता है, आपको पता नहीं चलता कि बस लेंथ, इतने लेंथी सेंटेंसेस होते हैं कि आपको पता नहीं कि इसमें वर्ब कौन सा है, वर्ब फ्रेज कौन सा है, इसकी जो मेन इसका सब्जेक्ट कौन सा है, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसमें कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से हैं. तो इस हवाले से फ्रेज को जानना बहुत ज़रूरी है. क्लियर क्लास? अच्छा, मैंने अभी आपसे बात, ये सारे फ्रेजेस हैं. अगर लेट्स सपोज मैं इनको कंप्लीट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कहता हूँ कैबिनेट इज़ मेड ऑफ स्टील. कोई कैबिनेट मीन अलमारी इज मेड ऑफ स्टील. नाउ इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस क्योंकि इसके साथ मैंने सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिया. क्लियर? आयशा is in the class. Clear? Who is in the class? Aisha. Subject and verb. Clear? Talented player. I
saw a talented player. मैंने एक talented खिलाड़ी को देखा. Clear? On the ground, she is sleeping on the ground. वो ground के यानी जमीन के ऊपर सो रही है. She is sleeping on the ground. अब इनकी मीनिंग निकल के आ रहे हैं, लेकिन जब इसके साथ आप सब्जेक्ट वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब लगाने के अलावा इनकी कोई मीनिंग नहीं होती. या टू एंजॉय लाइफ, दे वांट टू एंजॉय लाइफ, वो जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं. क्लियर क्लास? आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे. एंड हु इज स्मोकिंग इन द गार्डन, हु इज स्मोकिंग इन द गार्डन, गार्डन में कौन स्मोकिंग कर रहा है. स्मोकिंग के साथ मैंने इस लगा के इसको वर्ब फ्रेज बना दिया. ठीक है क्लास? तो ये सारे ये आप देखें ना, ये सारे ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं. ये सेंटेंस में ग्रामेटिकल यूनिट्स हैं जो जब इनके साथ आप इनके प्रॉपर पोजीशनिंग करेंगे सब्जेक्ट वर्ब की, तब ये आपको कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करेंगे. क्लास अभी मैंने आपसे बात की कि नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसका क्या मतलब है. तो इस बात को मैंने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक तो हमारे पास होता है सब्जेक्ट क्लास. फॉर एग्जांपल नंबर 1 सब्जेक्ट फ्रेज. क्लियर? सेकंड वर्ब फ्रेज, एंड थर्ड no subject verb phrase. No subject verb phrase means के अंदर कोई subject verb नहीं होता. क्लास subject phrase मीन हमारे पास बहुत सारे subjects हैं. noun phrase, इस तरह verb phrase, adverb phrase, adjective phrase, prepositional phrase, infinitive phrase, gerund phrase, participle phrase, appositive phrase and absolute phrase. वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे. उसमें जो नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज दैट इज सब्जेक्ट फ्रेज एंड ऑब्जेक्ट फ्रेज. क्लियर? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अ पुअर मैन. सो नाउ दिस अ पुअर मैन, इट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल किस तरह? अ पुअर मैन इज बेगिंग in the street. A poor man is begging in the street. In this sentence, there are 2 phrases. A poor man, which is the subject of the sentence. Who is begging in the street? गली में भी कौन मांग रहा है? So the answer is man. ये मेरा सब्जेक्ट है. इस man को मॉडिफाई किया है 2 लफ्जों ने. A poor तो एक पूरा नाउन फ्रेज बना, which is the subject of this sentence. And in the street यहां पे एक adverbial है. Where is he begging? वो कहां पे भीख मांग रहा है? In the street. So adverb of place है, adverbial है, और ये चूंकि preposition से start है तो इसको हम क्या बोलते हैं? Prepositional phrase. So this sentence has 2 phrases. तो अभी हमने पढ़ा कि subject phrase तो हो सकता है, लेकिन subject और verb phrase दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते. अच्छा, इसके अलावा मैंने वर्ब फ्रेज की बात की. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हैज बिन रीडिंग. तो ये क्लास क्या हुआ? ये हमारा वर्ब फ्रेज हुआ. व्हाट इज वर्ब फ्रेज? हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन वर्ब, वर्ब फ्रेज. सो ये तो वर्ब फ्रेज है, बट देयर इज नो सब्जेक्ट. क्लियर? अगर मैं इसके साथ सब्जेक्ट लगाऊं कि गुलफाम हैज बीन रीडिंग, इसके साथ में कोई और बुक, वट एवर बी, गुलफाम हैज बीन रीडिंग अ बुक, गुलफाम किताब पढ़ रही है. तो ये जो वर्ब फ्रेज था मेरा, ये तो वर्ब फ्रेज था. जब इसके साथ मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, नाउ दिस provides clear meaning. You understand? So phrases, और ऐसे phrases भी हैं कि जिसमें कोई subject verb मीन न तो subject phrase होता है न verb phrase होता है. For example, मैं बोलता हूं
in the class, whatever be in the class. So in the class, no. For example, मैं कहता हूँ they are in the class. वो क्या है? वो क्लास में है. दे आर इन द क्लास. सो अभी इसके साथ दे जो है दैट इज द सब्जेक्ट, आर लिंकिंग वर्ब, इन द क्लास यहाँ पे मेरा एक फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है. सो नाउ दिस प्रोवाइड्स क्लियर मीनिंग. तो इसमें ये पता चला कि फ्रेजेस में सब्जेक्ट फ्रेज भी होता है, वर्ब फ्रेज भी होता है, एंड ऐसे फ्रेजेस भी होते हैं जो न तो सब्जेक्ट फ्रेज होता है न वर्ब फ्रेज होता है. अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिख लेता हूँ ताकि आपको फ्रेज की जो इंपॉर्टेंस है उसकी समझ आए, एंड फिर हमारी क्लास जो है दैट इज ओवर. वो स्टूडेंट्स जो ऐसे राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए फ्रेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल क्लास में एक सेंटेंस लिख लेता हूं. द talented student of the class, of the school, the talented student of the school sitting in the corner of his classroom, or sitting in the corner of his classroom on the floor, immersed in deep thinking, with dry lips and pale complexion, wants to secure good marks in the final term in the next examination. In the next examination scheduled in the last month. Scheduled in the last month, his face expressing worries. क्लास देखिए, एक छोटा सा सेंटेंस है, एक शॉर्ट सेंटेंस है. फ्रेजेस ने आके उसका हुलिया जो है, मैं तो नहीं कहते बिगाड़ दिया, हुलिया सवार दिया, बिगाड़ दिया, जो भी आप समझें. इस सेंटेंस, इस पूरे, ये आप देखिए तो ये पूरा पैराग्राफ नजर आता है क्लियर. ये बहुत सारे, अगर डॉन न्यूज़पेपर आप उठा के देखिए, उसमें आप आर्टिकल पेज पे जाए तो आपको वहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे 10-15 फ्रेजेस आपको मिलेंगे. क्लास अभी आप इसकी थोड़ी सर्जरी कराते हैं. द टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द स्कूल sitting in the corner of his classroom on the floor, immersed in deep thinking with dry lips and pale complexion,
wants to secure good marks in the final term in the next examination schedule in the last month his face expressing worries. Clear class? अभी इस sentence के अंदर it becomes very difficult to spot the subject and the main verb and the object. कि इसमें फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इतने फ्रेजेस ने उस सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को घेरा हुआ है कि उसमें निकालना मुश्किल होता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले हमने बहुत सारे क्लासेस ली सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो आप अगर आपने नहीं देखे तो आप काइंडली देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट। फिर मैंने आपको सब्जेक्ट के टाइप्स बताए थे, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। वर्ब के मैंने आपको बताए थे एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। एंड द सेम मैंने ऑब्जेक्ट को आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन एंड कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। क्लियर क्लास? तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे हम वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें वर्ब कौन सा है। अभी आप देखिए द टैलेंटेड स्टूडेंट, अच्छा यहां से लेके द टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द क्लासरूम वर आगे जाके डीप थिंकिंग लिव्स विद फेल कॉम्प्लेक्शन वांट्स, देखिए वांट्स ये मेरा जो है वांट्स जो है यहां पे मेरा क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। क्लियर क्लास? विच अब wants to secure good marks। अच्छा अब यहां काम आसान है। Who आप मैंने आपको बताया था, if you want to spot out the subject of the sentence, आप verb से पहले who लगाएं, who and what। If the subject is living then you will use who। If the subject is non-living, mean the noun is non-living, then you can use what। Who wants to secure good marks? Who wants to secure good marks? कौन अच्छे नंबर लेना चाहते हैं? तो इससे पहले आप इन 3 लाइन्स के अंदर देखें कि कौन चाहता है। सो द वेरी सिंपल, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है वो चाहता है। स्टूडेंट्स वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। यहां तक आपका इन 3-4 लफ्ज को मिला के एक सेंटेंस बना, लेकिन इसके साथ हमने इतने फ्रेजेस बना दिए। अच्छा स्टूडेंट के साथ मैंने लगाया द टैलेंटेड स्टूडेंट, तो ये क्या बना, ये वर्ब फ्रेज बना, ये एक फ्रेज। क्लियर? ऑफ द स्कूल, सेकंड फ्रेज। सिटिंग इन द कॉर्नर, थर्ड फ्रेज। ऑफ हिज क्लासरूम, नंबर 4। ऑन द फ्लोर, 5th। इमर्स्ड इन डीप थिंकिंग, गहरे सोचों में डूबा हुआ, 6ठा फ्रेज। विद ड्राई लिप्स, खुश्क होंठों के साथ, 7वां फ्रेज। एंड पेल कॉम्प्लेक्शन, जर्द चेहरा लिए हुए, नंबर 8। 8 फ्रेजेस तो यहां तक बने। वांट्स, ये तो आपका वर्ब हुआ। टू सिक्योर गुड मार्क्स, नंबर 9th। क्लियर क्लास? किस में? इन द फाइनल टर्म, ये नंबर 9, ये 10वां फ्रेज बना। अच्छा किस में? इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, नंबर 11वां फ्रेज। शेड्यूल इन द लास्ट मंथ, जो लास्ट मंथ में शेड्यूल है, नंबर 12 फ्रेज। और ये जो लास्ट है इस फेस है, इस फेस एक्सप्रेसिंग वरीज, एब्सोल्यूट फ्रेज है, तो ये नंबर 12 नहीं 13। तो एक सेंटेंस के अंदर 13 फ्रेजेस है। क्लियर? तो अभी आप पूछिए हु वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स? स्टूडेंट। सिंपल वर्ड, ये आपका सिंपल सब्जेक्ट है। सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ दूसरे वर्ड्स मिला के इसको कंप्लीट सब्जेक्ट हमने बना दिया, द टैलेंटेड स्टूडेंट। बाकी ये इसके अलावा ये जो सारे फ्रेजेस हैं ये मॉडिफायर्स हैं। ठीक है? मॉडिफायर्स मीन कि सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ये आपका सिर्फ एक वर्ब है, वांट्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। ये आपका क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट पार्ट में है क्लास। तो इसलिए आने वाले क्लासेस में हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे कि नाउन फ्रेज, व्हाट इज नाउन फ्रेज, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नाउन फ्रेज,
इस किस्म की एडजेक्टिव फ्रेज सारी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में फ्रेज से रिलेटेड आपके जहन में कुछ ना कुछ अक्स बना हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलाम वालेकुम।